We are discussing the subject wireless communications, and today's topic is channel assignment and handoffs in cellular networks, or rather, I say the strategies involved behind the channel assignment and the handoff facility. So, in the previous lecture, we discussed about the cellular architecture. Once again, you can see uh, what is the concept behind the cellular architecture. One low power transmitter per cell. Channel reuse is there, limited spectrum is there because of the reuse of the channel, and handoff, obviously moving to other calls. Will today moving to other cells, sorry, we'll today understand about the handoff technique also. Co-channel interference, this has to be avoided while transmitting on the same channel. Reuse distance, minimum distance between two cells using same channel for satisfactory signal to noise ratio is known as the reuse distance, and reuse distance has to be maintained in order to avoid the interference, of course. Propagation path loss for signal power, exponent ranges from 2 to 4. Now you can see the pattern, reuse का pattern आप देख सकते हैं. अगर मैं तीन टाइप्स की फ्रीक्वेंसी को रीयूज कर रहा हूं अपने हेक्सागोनल सेल आर्किटेक्चर में, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैं तीन कलर को मैंने यूज किया है, ब्लू, ग्रीन एंड रेड. So you can say that the frequency use pattern is assigned as 3. Okay, so blue is repeated, green is repeated, and red is repeated over the entire cellular architecture. When I'm saying that I am using the reuse pattern as 7, so I can assign the 7 different types of frequency to my channels. Okay, so 7 different kind of bandwidth, you can say. And each cellular architecture, let us say this pinkish is sharing some channels, some group of channels. Then this blue is sharing some group of channels. Then this gray is sharing some group of channels. Then the brown and so on. So all these colors are nothing but representation of the different group of channels. Okay, and by using the frequency reuse concept, we have utilized 7 different types of channels to be assigned under the cellular architecture. So 7 different types of frequency ranges can be assigned. Now moving ahead, what are the desirable qualities that has to be there in CA algorithm? CA means channel assignment algorithm. First is minimize connection setup time. कनेक्शन सेटअप करने में हमको कम से कम समय लगना चाहिए. अडॉप्ट टू चेंजिंग लोड डिस्ट्रीब्यूशन. लोड का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, 1 घंटे में अगर 50 कॉल आ रहे हैं सेम चैनल के ऊपर और दूसरे चैनल के ऊपर सिर्फ 5 ही कॉल आ रहे हैं, तो क्या हम स्विच कर सकते हैं? कैन वी शेयर द लोड? सो हाउ दैट लोड डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू बी टेकन केयर. चैनल असाइनमेंट का वो काम है. फॉल्ट टॉलरेंस, कितना फॉल्ट आप टॉलरेट कर सकते हैं, कितना इंटरफेरेंस आप टॉलरेट कर सकते हैं, ये कैसे डिसाइड होगा, ये भी चैनल असाइनमेंट का काम है. स्केलेबिलिटी, कितने रेंज पे हम उसको स्केल कर सकते हैं, उसकी रेंज क्या आप घटाया बढ़ा सकते हैं. कैन वी इंक्रीज द रेंज so that we can cover the more number of users in the particular cellular architecture. Low computation and communication overhead. हमारा जो कम्युनिकेशन और कंप्यूटेशन का जो ओवरहेड है वो कम से कम होना चाहिए. एक्सपेंसेस कम होने चाहिए, उसको करने के लिए जो एफर्ट लगा रहे हैं वो कम होना चाहिए. मिनिमाइज हैंड ऑफ्स. यस, हैंड ऑफ जो है कोई डिजायरेबल चीज नहीं है. हैंड ऑफ की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर यूजर ए इज नॉट सेटिस्फाइड विद द सिग्नल स्ट्रेंथ ही इज गेटिंग, सो ही विल टेक द चैनल विच इज अवेलेबल टू यूजर बी. I mean, user cannot take the channel, but the assignment technique will automatically switch the signal strength from position A to position B, from channel A to channel B. But अगर इसकी जरूरत ही ना पड़े तो ज्यादा अच्छा नहीं. अगर मुझे चैनल ए से ही सारी स्ट्रेंथ मिले तो मुझे चैनल बी में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे चैनल ए से चैनल बी में जाने के लिए कुछ तो एफर्ट लगाना पड़ेगा. आई हैव टू सेंड दिस सिग्नल, आई हैव टू रिसीव सम सिग्नल, आई हैव टू make some protocols, I have to follow some protocols. So all these things are required behind the handoffs.
तो मिनिमाइज करिए हैंड ऑफ्स को, चैनल को ऐसे असाइन कीजिए कि हैंड ऑफ की ज्यादा जरूरत ना पड़े। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉल्स दैट कैन बी एक्सेप्टेड कॉन्करेंटली, एक ही समय पे कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉल्स आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये भी चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और वो उसकी क्वालिटी को डिसाइड करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। कॉल एडमिशन कंट्रोल, द फंक्शन ऑफ कॉल एडमिशन कंट्रोल इज टू डिटरमाइन वेदर और नॉट टू ग्रांट रेडियो रिसोर्सेज to a new incoming or handoff call based on the information such as the current channel occupation, the bandwidth, QoS, quality of service. QoS stands for quality of service, requirements of calls in service, and the characteristic of the call that requests admission. तो मुझे कॉल रिजेक्शन करना है, रिजेक्ट द एडमिशन ऑफ द न्यू कॉल, या कॉल ड्रॉप करना है, फोर्सिंग एन ऑनगोइंग कॉल टू प्री मैच्योर टर्मिनेशन। ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये सब डिसाइड करेगा कॉल एडमिशन कंट्रोल। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्यूपेशन ऑफ द चैनल, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द चैनल, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज टू ट्रांसफर द कॉल्स, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि चैनल एडमिशन कंट्रोल किस तरीके से डिसीजन लेता है। नाउ द चैनल असाइनमेंट कैन बी फिक्स चैनल असाइनमेंट और द डायनेमिक चैनल असाइनमेंट। फिक्स चैनल असाइनमेंट में क्या होगा? चैनल्स आर प्री लोकेटेड टू द सेल्स ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज। मतलब मुझे पता है कि मुझे ए, बी और सी को ही यूज करना है। अगर ए में काम नहीं हुआ तो मैं बी में जाऊंगा, बी में काम नहीं हुआ तो मैं सी में जाऊंगा। इन तीन चैनल के अलावा मैं और कोई चैनल यूज नहीं कर सकता। इट इज प्री लोकेटेड, इट इज फिक्स्ड, सो वी कैन नॉट यूज दैट। लेकिन अगर मैं यही डायनेमिक चैनल असाइनमेंट ले लूं तो नो प्री लोकेशन इज देयर। व्हेन अ कॉल कम्स और अराइव्स एट अ सेल, then a channel not in use that does not violate the reuse condition. Obviously, जो भी चैनल यूज में नहीं होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे या ऑटोमेटिकली सिस्टम सेलेक्ट कर लेगा। बट ऐसा करते समय हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो फ्रीक्वेंसी रीयूज का बेसिक कंसेप्ट है वो हम अवॉइड नहीं कर सकते। क्या है बेसिक कंसेप्ट? भाई, दो चैनल जो सेम फ्रीक्वेंसी शेयर कर सकते हैं वो नेबर कभी नहीं हो सकते, उनको प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज इंटरफेरेंस विल ऑकर। सो वायोलेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी रीयूज कंडीशन नहीं होनी चाहिए और उसका हमको ध्यान रखना। ठीक है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है? रिक्वायर्स द एमएससी मोबाइल स्विचिंग सेंटर टू कलेक्ट रियल टाइम डेटा, चैनल ऑक्यूपेसी डेटा, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियो सिग्नल स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। हमको सारा डेटा रियल टाइम पे चाहिए कि भाई मेरा चैनल ऑक्यूपाइड है कि नहीं है, ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कौन से चैनल में ज़्यादा ट्रैफिक है, कहाँ पे कम ट्रैफिक है, स्ट्रेंथ कैसी है रेडियो सिग्नल की। सेकेंड इज सेंट्रलाइज्ड कॉम्प्लेक्स, प्रोवाइड अपर बाउंड्स ऑन नेटवर्क परफॉर्मेंस, एंड थर्ड इज द डिस्ट्रीब्यूटेड, सब ऑप्टिमल, इंटरेस्टिंग फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सेंट्रलाइज एलोकेशन भी हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूटेड एलोकेशन भी हो सकता है। सेंट्रलाइज एलोकेशन होगा तो वो कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि सेंट्रल बेस स्टेशन को ही सारी चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मतलब आपने सारे बेस स्टेशन को पावर दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो डायनेमिक चैनल असाइनमेंट जो स्ट्रेटेजी है ऑब्वियसली इट इज बेटर देन द फिक्स्ड चैनल असाइनमेंट। तो DCA schemes perform better under non-uniform and low traffic density। अगर नॉन यूनिफॉर्मिटी है, ट्रैफिक डेंसिटी लो है तो DCA जो है वो बेहतर है। As traffic increases the trunking gain in and it is dominated by the randomness in the reuse distance। ठीक है, and the FCA that is the fixed channel assignment it performs better when the uniform traffic is there and it is the higher one। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर मुझे 1 घंटे में 60 कॉल्स हैंडल करने हैं, ये मुझे पहले से पता है। ठीक है, और वो 60 कॉल्स कहाँ से आने वाले हैं ये भी मुझे पहले से पता है। यूनिफॉर्मिटी मतलब उन कॉल्स के बीच में। ठीक, तो मैं फिक्स चैनल वाला असाइनमेंट फॉलो करूंगा, मैं प्री चैनल्स में उनको अलोकेट कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे पता नहीं है कि कॉल्स कहाँ से आने वाले हैं, या कहना चाहिए डायनेमिक है वो कॉल्स और कैपेसिटी कम है, मुझे सिर्फ 10-15 कॉल ही अटेंड करने हैं या 10-15 कॉल्स को ही सर्विस देनी है, तो मैं डायनेमिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी ले लूंगा।
और यहाँ से वहाँ जब भी मुझे दिखेगा कि भाई ये चैनल मेरा फ्री है, मैं अपने बेस स्टेशन को बोलूँगा कि ये वाले चैनल की सर्विस मुझे लेनी है। जब जब भी मैं यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। मोबाइल स्विचिंग सेंटर इज द ब्रेन, इज द CPU of that microprocessor, which decides which base station has to be allotted, which base station has to take that call, from which base station to which base station my call has to be transferred. So all these decisions, the brain behind the decision is the MSC, mobile switching center. Okay, let us go ahead. मैक्सिमम पैकिंग, ये मैक्सिमम पैकिंग वगैरह इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे इतने काम का नहीं है ना। इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि ऑप्टिमम ट्रैफिक को अटेंड करने के लिए किस तरीके से चैनल लोकेशन स्कीम होती है, बट इसमें हमको ज़्यादा जाना नहीं है। चैनल बोरोइंग की मैक्सिमम इसकी बेसिक मैकेनिज्म क्या है वो थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। वो ये है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड डायनेमिक चैनल असाइनमेंट। अ चैनल सेट इज नॉमिनली असाइंड टू ईच सेल, जैसे कि FCA में होता है, मतलब फिक्स चैनल असाइनमेंट में होता है। व्हेन ऑल द चैनल्स इन अ सेल आर ऑक्यूपाइड, the cell borrows channels from the other cells to accommodate the incoming new or handoff calls, as long as the borrowed channels do not interfere with the ones used by existing calls। हमको DCA की जरूरत उस समय नहीं पड़ती, अदरवाइज द कॉल इज ब्लॉक्ड। ओके, the channel borrowing schemes are more flexible in the sense that by moving channels from less busy cell to more busy cells, a balanced performance throughout in the system can be achieved। Borrowing a channel X carries a penalty. Cells that were originally located this channel X may not be able to use this channel since they may be within the co-channel interference range of the cell that borrowed the channel। तो ऊपर के 3 पॉइंट हमको बता रहे हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं, ये 4th पॉइंट हमको बता रहा है कि डिसएडवांटेज क्या है। अगर मैंने सेम फ्रीक्वेंसी रीयूज वाला, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, सपोज A एंड B शेयरिंग द सेम फ्रीक्वेंसी, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, एंड आई एम यूजिंग दिस चैनल नंबर A, लेकिन बोरो कर लिया मैंने चैनल नंबर B से जिसकी फ्रीक्वेंसी वही है जो चैनल नंबर A की है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। तो कभी कभी चैनल जो बोरो करना है वो हमको लॉस भी करा देता है, उसकी पेनल्टी भी हमको झेलनी पड़ती। Thus the decreased blocking probability at the cell that borrow the channel is obtained at the cost of decreasing the capacity of the other cells, which in turn causes QoS, quality of service degradation in these cells। सिंपल लैंग्वेज में हम इसको समझे तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने अभी आपको चैनल A और B का एग्जांपल दिया, चैनल A और B अगर सेम काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी शेयर करते हैं, सेम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी शेयर करते हैं, इंटरफेरेंस में भी पॉसिबल व्हाइल बोरोइंग द कॉल, तो मैं क्या करूंगा, चैनल B की कैपेसिटी को रिड्यूस कर दूंगा सो दैट इंटरफेरेंस विल नॉट ऑकर। लेकिन ऐसा करने से जो ओवरऑल सिस्टम कैपेसिटी है, जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सर्विस है, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये है ट्रेड ऑफ जिसको ध्यान में रखना पड़ता है जब हम चैनल बोरो करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट चैनल बोरोइंग, ठीक है। और 2 पॉइंट्स हैं। द बेसिक चैनल बोरोइंग स्ट्रेटेजी गिव्स बेटर परफॉर्मेंस देन द FCA स्ट्रेटेजी एंड द लाइट एंड मॉडरेट ट्रैफिक। अगेन सेम ट्रैफिक कंसेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया, कुछ ज़्यादा इसमें यूनिक चीज़ नहीं है जो हम लोग को डिस्कस करनी है। I will not go into the details of channel borrowing, this is not important as well। Let us move ahead to handoff strategy if it is there। Yeah, so handoffs, क्या होता है handoff? When a user or call moves to a new cell, then a new base station and new channel should be assigned। एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते समय अपने आप ही MSC डिसाइड कर लेता है कि ये कॉल यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करनी। कैसे डिसाइड होता है? ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ द चैनल स्ट्रेंथ, on the basis of the quality of service, on the basis of the signal strength। Handoffs should be transparent to users while their number should be kept to minimum। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हैंडऑफ्स में, और ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 बार 2 बार 3 बार 50 बार आप हैंड ऑफ कर रहे हैं एक ही टाइम ड्यूरेशन के बीच में। इससे क्या होगा, इससे कनेक्टिविटी का इशू होगा।
कॉल ड्रॉप भी हो सकता है. तो हैंड ऑफ हैज टू बी एज मिनिमम एज पॉसिबल. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस. सो अ थ्रेशोल्ड इज देयर इन द रिसीव्ड पावर, जिसको पीआर बोलते हैं, जो हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं जिसको. एंड इट शुड बी डिटरमाइंड टू ट्रिगर द हैंड ऑफ प्रोसेस. मतलब अगर एक थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे मेरी सिग्नल स्ट्रेंथ गई तो मैं हैंड ऑफ के लिए चला जाऊंगा. अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये मेरा थ्रेशोल्ड लेवल है और मुझे लगता है एमएससी को, अगर ये लगता है कि इस थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे मेरी सिग्नल स्ट्रेंथ आ गई है, तो वो चैनल ए से चैनल बी में स्विच कर जाएगा अपने आप. ओके. So this threshold value should be larger than the minimum acceptable received power. Obviously भाई मिनिमम मेरी पावर जो स्ट्रेंथ की जो कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा ज्यादा तो मैं रखूंगा ये थ्रेशोल्ड, है ना. इसको आप ऐसा भी समझ लीजिए कि आपके लैपटॉप की बैटरी लॉस होने वाली है, बिल्कुल एकदम जीरो पे जाने वाली है, तो वो आपको ट्रिगर करता है, बताता है कि 7% बैटरी, 10% बैटरी इज रिमेनिंग. क्यों बताता है आपको? सो दैट यू कैन चार्ज योर बैटरी. ऐसा ही मोबाइल्स में वो इसीलिए है कि हमारा थ्रेशोल्ड लेवल हमको उससे थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ता है, इससे डैमेज ना हो. तो इसकी डेफिनेशन यही है, जो डेल है वो पीआर है. डेल मतलब पीआर मतलब आपका जो थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ है, हैंड ऑफ माइनस पीआर, ये आपका एक्सेप्टेबल रेंज है. ठीक है. डेल मतलब थ्रेशोल्ड लेवल, तो हैंड ऑफ से आप पीआर को माइनस कर दोगे. मतलब हैंड ऑफ आप तभी करोगे जब आपका थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो नियरेस्ट हो, क्लोजेस्ट हो. थ्रेशोल्ड लेवल जब आप अचीव करने लगो, या आपको लगे कि भाई ये जो है वो मेरा मैक्सिमम सैचुरेशन लेवल है, इसके बाद मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगा किसी भी फॉल्ट को. इफ डेल इज लार्ज देन टू मेनी हैंड ऑफ्स. ठीक है. इफ डेल इज स्मॉल देन इनसफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट अ हैंड ऑफ. ना आप डेल को ज्यादा रख सकते हैं, ना आप डेल को कम रख सकते हैं. आपको कोई एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल लेके चलना पड़ेगा. अब ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको समझते हैं इससे. ये सिनेरियो देखिए, ये बेस स्टेशन 1 है जहाँ पे ये ए है, और ये बेस स्टेशन 2 है जहाँ पे बी है. ये नीचे नीचे की फिगर की बात कर रहा हूँ. अब आप आ जाइए फिगर ए में. इसमें दो चीजें एक्सप्लेन की गई है. फिगर ए बता रहा है इम्प्रॉपर हैंड ऑफ सिचुएशन, और फिगर बी बता रहा है प्रॉपर हैंड ऑफ सिचुएशन. अब इम्प्रॉपर क्यों है ये देखिए. ये आपको वाई एक्सिस में दिख रहा है रिसीव्ड सिग्नल लेवल, और एक्स एक्सिस में दिख रहा है टाइम. ये जो ऊपर वाला लेवल है वो है पॉइंट ए पे, और ये जो नीचे वाला लेवल है वो है पॉइंट बी पे. हैंड ऑफ का थ्रेशोल्ड कितना है? यहाँ पे हैंड ऑफ का थ्रेशोल्ड बनाया गया सेकंड लाइन पे. अब जब मैं यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं टाइम जैसे 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 मैं आगे ले जाता जा रहा हूँ, मैंने ये देखा कि ये जो पॉइंट ए लेवल पे जो सिग्नल की स्ट्रेंथ थी वो पॉइंट बी पे आते आते इस थ्रेशोल्ड के नीचे चली गई. और यहाँ पे देखिए तीसरी लाइन जो है वो है मिनिमम एक्सेप्टेबल रेंज टू मेंटेन द कॉल, वो उससे भी नीचे चली गई. एंड देन ऑल्सो आई हैव नॉट परफॉर्म दैट हैंड ऑफ. मतलब मैं चैनल दूसरा सेलेक्ट नहीं कर पाया, तो वो पॉइंट बी के आते आते कॉल क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया. मुझे क्या ध्यान रखना था? मुझे इस थ्रेशोल्ड को ध्यान रखना था. थ्रेशोल्ड के जैसे ही नीचे आया मुझे हैंड ऑफ के लिए चला जाना था, बट आई डिड नॉट परफॉर्म द हैंड ऑफ. और उसकी वजह से ये जो स्ट्रेंथ है चैनल की वो मिनिमम एक्सेप्टेबल रेंज से भी नीचे चली गई, और पॉइंट बी के आते आते मेरा जो कॉल है वो क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया. तो बोलते हैं इम्प्रॉपर हैंड ऑफ. प्रॉपर हैंड ऑफ क्या होगा? आप देख सकते हो फिगर बी में, जैसे ही मुझे ये मिनिमम स्ट्रेंथ मिली, मतलब मुझे जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो मिला, वैसे का वैसे मैंने क्या कर दिया? बेस स्टेशन 2 को ट्रांसफर कर दिया इस कॉल को. तो लेवल एट पॉइंट बी जो है वो अचीव हो गया, कॉल टर्मिनेट नहीं हुआ. बेस 2 में ये BS1 से BS2 में क्या हो गया? कॉल ट्रांसफर हो गया. तो दिस इज प्रॉपर हैंड ऑफ. तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल हमको फॉलो करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ता है कि भाई हैंड ऑफ रिक्वायर्ड है या नहीं. ठीक है. So this is all about basics of handoff. In order to correctly determine the beginning of handoff, we need to determine that a drop in the signal strength is not due to the momentary bad channel condition, but it is due to the fact that the mobile is moving away from the base station. Obviously, कोई momentary अगर आप temporary अगर कोई डिस्टर्बेंस आए तो उस केस में आप हैंड ऑफ नहीं करेंगे. आप देखेंगे कि भाई आपका जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो इसलिए रिड्यूस हो रही है क्योंकि आप बेस स्टेशन से दूर जाते जा रहे हैं.
Thus, the base station needs to monitor the signal level for a certain period of time before initiating a handoff. The length of the time and the handoff process depends on the speed and moving pattern. कितने टाइम में हम हैंड ऑफ करना चाह रहे हैं वो डिपेंड करेगा यूजर की स्पीड के ऊपर, उस मोबाइल की स्पीड के ऊपर भी और उस प्रोसेस के ऊपर भी. फर्स्ट जनरेशन सिस्टम टिपिकल टाइम इंटरवल टू मेक अ हैंड ऑफ वाज 10 सेकंड्स, मतलब 10 सेकंड में वो हैंड ऑफ कर लेते थे. लार्ज था मतलब डेल. सेकंड जनरेशन एंड आफ्टर टिपिकल टाइम इंटरवल टू मेक हैंड ऑफ इज 1 to 2 सेकंड, स्मॉल डेल. तो सेकंड जनरेशन के आते कहते हमने डेल को क्या कर लिया, बहुत कम कर लिया. मतलब हम तुरंत डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे हैंड ऑफ करना है अगर मुझे सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं मिल रही. First generation systems, handoff decision was made by base station by measuring the signal strength in reverse channels. And second generation and afterwards, mobile assisted handoff, MAHO. Mobile measures the signal strength from different neighboring base stations, and handoff is initiated if the signal strength from a neighboring base station is higher than the current base station signal strength. Clear to you? ऑटोमेटिक कर दिया गया इसको. ठीक है, चैनल ए को लगा कि भाई मेरे पास जो स्ट्रेंथ है उस यूजर को देने के लिए, उस मोबाइल को देने के लिए प्रॉपर नहीं है, और जो नेबरिंग चैनल भी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वहां से उसने अपने आप ही स्विच कर दिया. उसको बोलते हैं मोबाइल असिस्टेंट हैंड ऑफ, क्योंकि मोबाइल डिसाइड करता है कि उसको कौन से चैनल से सर्विस लेनी है. लेट अस talk about the cell dwell time. It is the time over which a call may be maintained within a cell, okay, without any handoff. It depends on propagation, interference, distance between base station and mobile station, speed and moving pattern. Highway moving pattern, the cell dwell time is ARV with distribution highly concentrated around the mean. Other micro cell moving patterns, mix of different users टाइप्स विथ लार्ज वेरिएशंस ऑफ ड्यूअल टाइम. ये ड्यूअल टाइम कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए इसको एक लाइन में कि मिनिमम टाइम जो सेल जो है वो सस्टेन कर सकता है उस कॉल को विदाउट स्विचिंग फ्रॉम वन चैनल टू अनदर चैनल, तो विदाउट इनिशिएटिंग द हैंड ऑफ, उसको हम लोग बोलते हैं सेल ड्यूअल टाइम. प्रायोरिटाइजिंग द हैंड ऑफ्स. क्या क्या प्रायोरिटी की जरूरत पड़ेगी आपको हैंड ऑफ के लिए, तो है guard channels. Fraction of total bandwidth is in a cell is reserved for exclusive use of handoff calls. Therefore, total carried traffic is reduced if fixed channel assignment is used. However, if dynamic channel assignment is used, the guard channel mechanism may offer efficient spectrum utilization. ये गार्ड चैनल आप ऐसे समझ सकते हैं, आप लोगों ने डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा, अगर मुझे दो चैनल के बीच में इंटरफेरेंस को अवॉइड करना है, दो सिग्नल्स के बीच में, दो मॉड्यूलेशन के बीच में, तो मुझे बीच में गार्ड फ्रीक्वेंसी यूज करनी पड़ती, वो यही है गार्ड चैनल्स. ठीक है, नंबर ऑफ चैनल्स टू बी रिजर्व करना पड़ेगा गार्ड चैनल के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, और स्टैटिक और डायनेमिक स्कीम होगी जैसा हमने पहले पढ़ा, मतलब वो फिक्स्ड भी हो सकता है और डायनेमिक भी हो सकता है. तो ये प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी हैंड ऑफ के लिए. क्यूइंग हैंड ऑफ्स. अब क्यूइंग हैंड ऑफ्स का मतलब the objective is to decrease the probability of forced termination of a call due to lack of availability of the channels. When a handoff call cannot be granted to required resources at the time of its arrival, the request is put in a queue waiting for its admitting conditions to be met. क्वालिटी ऑफ सर्विस की बार बार बात हो रही है. क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यूज़र को, और मुझे ये देखना पड़ेगा कि चैनल फ्री है या नहीं है हैंड ऑफ परफॉर्म करने के लिए. कभी कभी मैं उसको क्यू में भी डाल सकता हूँ. आप इसको माइक्रो प्रोसेसर के इंटरप्ट के जैसे भी ट्रीट कर सकते हैं. माइक्रो प्रोसेसर के पास अगर इंटरप्ट आता है तो वो रोटेटिंग प्रायोरिटी पे रख सकता है उसको. एडवांस प्रोसेसर रोटेटिंग प्रायोरिटी पे ही काम करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक. तो क्यू में हम उन हैंड ऑफ्स को हैंडल करेंगे. ये हो गई सेकेंड प्रायोरिटी. Then, according to the types of the call that are queued, queuing priority schemes are classified as handoff call queuing, new call queuing, and handoff or new call queuing. Handoff calls are given
primitive priority over new calls. ठीक है, सो ये सारी प्रायोरिटी की बातें हैं. हमको हैंड ऑफ कब परफॉर्म करना है या नहीं करना है, उसके ऊपर कैसे हम डिसाइड करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि चैनल की स्ट्रेंथ उस समय कैसी है, चैनल फ्री है या नहीं है, क्या हम हैंड ऑफ अवॉइड कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, ठीक, क्या कॉल ड्रॉप करना उस समय बेटर सॉल्यूशन है. तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है हैंड ऑफ स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए. कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द हैंड ऑफ स्ट्रेटेजीज. Okay, so this is all about today's discussion. Thank you for watching it.